I think I'll start with what I'm looking forward to the session. So I do believe that the Voices of Youth is going to be an amazing platform for people who are facing challenges right now, who are going through a lot of struggles. And when I see in hindsight, for a person like me coming from a very small rural town of Punjab and not having that kind of exposure, the kind of platform that we are offering, I would have loved that. I think a lot of my problems would have been solved if I had this kind of platform. True. And yes, I think Ruhul and Ira, the kind of privilege we have right now, and the kind of access that we have, I do feel responsible for spreading the word to a lot of people who may not have that kind of exposure. True, true. Hi, hello. Hi, Hi, hi. hi I there. think I just lost the connection in between. So, Yeah, yeah. yeah. Hi, It's Hi, everyone. Kiran. hello. How are you guys? Yeah, I'm doing good. How are you all? Good, good, very good. Yeah. I have been doing as well, but I think we should, Ira, tell people that Igbir had typhoid and Yes. still he agreed to do this live. And I think that speaks a lot about him, speaks a lot about the person Yeah. Igbir is. So kudos to you, Igbir, and thank you so much, both of you, for your It's a time. pleasure. Thank you for having me here. It's a pleasure for me. And I'm recovering, so just in good spirits. Okay, so I think we should start. Yeah, for Okay. sure. Let's start. So, Yeah. hi everyone. A lot of people are joining. Hello, hello. Okay, so a very warm welcome to everyone. So I, Ira and Manik from Second Act are very excited and glad to present you Voices of Youth, today's voices. So, so as Manik was telling that at Second Act we always aim to provide that space, that platform for everyone to rediscover and reconnect themselves with themselves. So, with Voices of Youth, we hope to reach out to those souls and those people, who find themselves lost in the chaos of this world and sometimes with problems and issues. There's so many happening, so many things happening. So, we wish to break those shackles and that bound us and, find that motivation to attain all our heart's desire. So, we have two very special guests today for our live session. Igbir Maheshwari and Ruhul. So let's start with Igbir. He's an actor and MC based in Mumbai who feels that acting has made him a person with a better vision and perspective. It has given him the ability to think beyond what society tells us to think. Very welcome, Igbir, and thanks for coming even in this situation. I hope uh, this will lead to a better discussion. Yes, So I'm next we sure. have, yeah, yeah, yeah. Just please go ahead. Yeah. Okay. So next we have Ruhul, who's a singer, composer, photographer, entrepreneur. I think full package, I would say, full package, and Not that much. he believes in experiencing his life in full totality. And I could say this because Ruhul is a very, very good friend of mine, and I've seen him living like full, total जैसे जीना है वैसे जीना है. And I've seen his journey of becoming who he is today. So I'm very, very excited to talk to you guys and welcome Igbir and Ruhul. Thank you. Thank you. So now, without wasting any more time, let's talk to our guests for today's live. So, Igbir and Ruhul, whenever we talk about performing arts or any sort of art form, we always say that art gives you that different perspective, that different vision to look at the world. So, Yes. how does uh, that perspective has come in your experiences? How does that respective art form has helped you to explore you, and how it has contributed in your journey? Okay. I think Igbir, do you want to start first or? I think, yeah, you should go first. Okay, okay. Thank you. Thank you Yeah. for the opportunity. Okay, so as Ira asked the question that कि मुझे exactly कैसे help मिली एक मतलब इस society को
मतलब अपने पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, अपने जो मेरे पैशन है मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो एग्जैक्टली बीइंग, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, सो बीइंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, होता ये है कि आपकी फैमिली और आपका जो है मतलब एक अलग ही कनेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस आर लाइक मतलब नेक्स्ट लेवल, राइट? कि हमारा बेटा तो ये करेगा, हमारा बेटा वो करेगा, लाइक दैट। तो ये छोटे से होता है, मतलब जैसे ही आप एक फैमिली में पैदा होते हो तो वो छोटे से आपको उसी चीज को लेकर के आपको बड़ा किया जाता है। और इट्स लाइक कि आपके दिमाग में वो चीज रखी जाती है कि तेरे से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, तेरे को सारी पूरी करनी है। इट्स लाइक वेरी रॉ, ठीक है, डायरेक्टली होता है। और ब्लंटली लाइक माय फादर यूज्ड टू से कि कॉलेज के बाद कुछ नहीं, ऐसे मतलब खुद से कुछ करना है, ये वो, ठीक है, मतलब खुद का अपना देखना है। तो वहां से ही मतलब वो चीज शुरू हो जाता है कि यार तुम्हें अपना ही देखना है और खुद के पैरों पे स्टैंड होना है, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मैं स्कूल में था, स्कूल में ऑब्वियसली लाइक वी आर लाइक हाँ ठीक है, कर रहे पढ़ाई एंड ऑल, खेल कूद में ऐसा कुछ है, बट इतना नहीं होता। बट मेरा आई थिंक जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट वही था कॉलेज में, कि जब मैं ये चीज डिसीजन ले पाया कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली लाइफ में। क्योंकि रियलिटी ये है कि आजकल दुनिया में इतने सारे मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि इट्स अ बिग कंफ्यूजन। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है कि लोगों को ये समझ नहीं आता एग्जैक्टली करना क्या है। और Hmm. इवन आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता, लिटरली मतलब जिनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। या फिर उनको ये भी नहीं पता कि और जॉब भी करे हो, देर लाइक हाँ ठीक है 9 to 5 जॉब है, सैलरी आ जाती है महीने महीने, दैट्स फाइन, ठीक है, उनका यहाँ तक रहता है। तो देर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ कि आए और पैदा हुए और लाइक वन डे यू विल डाई, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि यार अगर कुछ करना है तो ऐसा करना है जिसमें मुझे खुशी मिले, मुझे अच्छा लगे। और जस्ट लाइक कि अगर मैं थोड़ा भी उसमें अर्न करूँ तो मुझे अच्छा लगे, वो मैं एटलीस्ट मैं सुकून से कह सकूँ हाँ ठीक है, ये मैंने अर्न किया है और मेरे को अच्छा लग रहा है। तो कॉलेज में आके भी एक पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट था मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली यार लाइफ डिसीजन जब आप लेते हो तो इट्स अ बिग थिंग फॉर यू, क्योंकि आप एंटायर लाइफ उसी चीज को कैरी करोगे आगे, राइट? तो होता ही है कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसे ही चलेगा कॉलेज का। वो तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही एडजस्ट होने में निकल जाता है कॉलेज में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली सबका जो फर्स्ट ईयर होता है वो काफी ज्यादा ऐसे होता है हेक्टिक सा, यार कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उन सब में निकल जाता है। देन जब सेकंड ईयर आया तो थोड़ा सा हुआ, हिट किया कि यार सेकेंड ईयर आ चुका है, अब क्या, मतलब क्योंकि एक साल और बचा है, अब उसके बाद क्या करना है तू डिसाइड कर ले। आई यूज टू रीड अ लॉट, मैं रीड करता था पहले, लिटरेचर बहुत पसंद था, बट मैंने लिटरेचर इसलिए ऑप्ट नहीं किया था कि मेरे को उससे कुछ करना है। मेरा ये पॉइंट था, मेरे को, मैं हमेशा ऐसा रहा हूँ कि जो मेरे को पसंद है मैं कर लेता हूँ, मैं इतना सोचता नहीं हूँ ना हो रहा है, मतलब आई जस्ट वांट टू डू इट, आई विल डू इट, बस ऐसा है। तो मैंने लिटरेचर इसलिए किया क्योंकि मेरे को लिटरेचर पसंद था, तो मैंने पढ़ लिया। अब मेरे पास कोई प्लान नहीं था लिटरेचर को लेकर, एग्जैक्टली कोई प्लान नहीं था कि लिटरेचर को कैरी करते हुए आगे कुछ करना है। तो ऐसे हवा में बातें उड़ती है कि जैसे कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, कोई भी कुछ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आसपास के लोग आपको सजेशन देने लगते हैं। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता, बट आपको सब बता रहे होते कि आपको क्या करना है, ठीक है। ठीक है, ये सारे रिलेट कर पा रहे हैं आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सब बता रहे थे कि Absolutely, ऐसे हुई, absolutely. हाँ, या तो सब ये बता रहे थे कि ऐसे करना है, ये करना है, यू कैन गो इनटू जर्नलिज्म एंड ऑल। तो एक टाइम पे हिट कर गया जर्नलिज्म कि भाई तू जर्नलिज्म में जाएगा, देख लो। फिर ऑब्वियसली जर्नलिज्म वाज लाइक एक वो था, लाइक इट वाज जस्ट लाइक ए मेकअप कि हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से ऐसा है, सब बता रहे अच्छा है, लेकिन मुझे शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने देखा तो ये सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते आई वाज लाइक नहीं यार ये भी नहीं, क्या करूँ। एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग म्यूजिक एंड ऑल, मतलब आई वाज इनटू म्यूजिक एंड फोटोग्राफी एंड ऑल, तो मैं ऑलरेडी था उसमें। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेजोरिटी इंडियंस, जो कि आर्ट फॉर्म को इतना एनकरेज नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। True, true. मतलब दे आर लाइक कि ये करियर ऑप्शन नहीं है, ठीक है तू कर रहा है साइड बाय साइड करता रहे, लेकिन साथ में तू ये कर, ठीक है। तो बट मेरा ये था कि साइड बाय साइड में कुछ और कर लूंगा, ये मैं मेन कर लेता हूँ। आई वाज लाइक कि ठीक है, आई वाज लाइक कि आप अपनी नौकरी रखो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट। Wow. Okay. इट वाज लाइक एक हिट था मेरे लिए कि यार अब थर्ड ईयर है, लेट्स डू समथिंग। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग गिटार, एंड आई स्टार्टेड मतलब परफॉर्मेंस मैं करना स्टार्ट कर दिया मैंने, परफॉर्मिंग। उसके बाद फिर मतलब यही चीज करते करते मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला, और मेरे को ये भी लगा कि सोसाइटी का जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है करियर को लेकर या फिर चीजों को लेकर, और कहीं ना कहीं मैं भी उसका एक एक पार्ट था कि यार मेरे को भी उसी तरफ धकेला जा रहा है,
क्योंकि कभी आपको कोई चीज नई चीज सीखने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता, जो चीजें जैसे यू कैन से इट अ भेड़ चाल काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ सब जा रहे वही जा रहे हो, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी यही सिखाते हैं कि तेरे को पढ़ाई करके एक जॉब करनी है। कोई ये नहीं सिखाता कि कोई एक आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, नहीं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। बट वही है कि किसी के अंडर कैसे काम करना है आपको, वो मतलब गुलामी करना हर कोई सिखा रहा है, लेकिन आपको लीड करना कोई नहीं सिखा रहा। थिंग इज दैट। तो अपना ऐसा था कि अपन को मेरे को लीड करना था, मतलब मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, बिकॉज आई थिंक कि मैं अगर किसी के अंडर काम करता हूँ तो मेरी जो सेल्फ क्रिएटिविटी है, जो मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं छुट जाएगा, क्योंकि मेरा बॉस चाहेगा कि मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँ, जो कि अपनी क्रिएटिविटी को मारना हो। तो इसी वजह से फिर मैंने एक डिसीजन लिया, एंड वो काफी अच्छा डिसीजन था, और मैं अभी तक उस चीज के साथ हूँ, और मैंने लाइफ को काफी अलग नजरिए से देखा है। जैसे मैंने इस प्रोफेशन में आया, काफी चीजें चेंज हुई है, कि नहीं ऐसा नहीं है कि एक 9 to 5 की जॉब आपकी लाइफ है, नहीं, म्यूजिक कैन ऑल्सो बी योर लाइफ, फोटोग्राफी कैन ऑल्सो बी योर लाइफ। ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती है वो भी, तो पर्सपेक्टिव में काफी चेंज आता है इन ए पॉजिटिव नोट। एक भी प्लीज, या दैट्स इट। What Yeah, about I you, mean, Izzy? um, so I am an anchor and an actor. Uh, तो मुझे शुरू से I've always known that I was interested into acting and like some sort of performing arts. Um, but I also believe, matlab, I agree that I come from a background like I do not belong to a big city. I hail from Bikaner. So I understand where my parents are coming from. तो कभी कभी आप वो उस चीज को बाद में जाकर आप समझते हो कि वो आपकी लाइन ऑफ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, because that is what they have seen their entire lives. So maybe उनको भी ऐसा नहीं लगा होगा, उन्हें ऐसा लगा होगा कि ओके ये भी बड़ा होके मे भी दुकान पे बैठेगा या बिजनेस करेगा या जो कुछ भी है, that's what a typical Rajasthani Marwadi family thinks. But I was different and I was always different. And I always had that sort of a passion to do it also, like to pursue what I wanted to do. जब मैं 9th में था तो I remember I used to fight for summer camps कि मुझे summer camps में जाना है, acting courses लेना है या फिर anchoring courses लेना है, and I did it. I mean, एक बार, और मुझे माइक पकड़ने का इतना शौक था, I remember मुझे माइक पर बोलने का इतना शौक था कि once we were coming back from school, घर आ रहे थे हम लोग वापस स्कूल वैन में, और मैंने जो मेरे स्कूल के जो वैन के ड्राइवर थे उनसे मैंने कहा कि मुझे एक माइक दिलवा दो। मैंने कहीं पर किसी जो ये पोडियम जैसा कुछ होता है, माइक स्टैंड होता है, ऑब्वियसली आप जब छोटे होते हो आपको पता नहीं होता हाउ डू माइक्स ऑपरेट, आपको लगता है कि बस ऐसी आवाज आ जाती है कहीं से। तो मैंने उससे कहा कि मुझे माइक चाहिए, मुझे माइक पे बोलना बहुत अच्छा लगता है एंड आई नीड अ माइक। तो एंड ऑब्वियसली उसने बोला कि मैं क्यों दिलाऊंगा भाई, मेरा थोड़ी ना ये काम है। तो मुझे झांसा देता गया कि चलो इस बच्चे को छोड़ने के बाद, इस बच्चे को ड्रॉप करने के बाद आई टेक यू टू द शॉप एंड आई बाय यू अ माइक। मैंने उसे कहा देखो नहीं दिलाया तो मैं कूद जाऊंगा, आई जंप ऑफ द वैन, एंड उन्होंने नहीं दिलाया एंड आई लिटरली जंप्ड ऑफ। Oh. And this was when my parents realized that okay, he's really serious about something. And then I started with my anchoring, as in summer camps and all of it. फिर मैं स्कूल में एंकरिंग करता था, जैसे कजिन्स की या कोई घर की कोई शादियां होती थी तो they'd ask me to anchor, but I never knew that I could make it a profession. मुझे ये नहीं पता था कि it's a profession that pays you well. Until when I moved to Delhi, and then even after college, I got to know this, that you can be a professional MC, you can host events, corporates and weddings and all of it, and you can earn good money out of it. So my friend suggested, his cousin is an MC, so he suggested that you should try getting into the industry. तुझे art तो पता है, but industry standard समझने के लिए you'll have to get under someone. तो मैंने उनके साथ में काम किया 4-5 महीने. I learned the industry standards and then I ventured into my own work. And साथ में जो main चीज थी जो acting की चल रही थी, that was always there. But मेरे parents को acting का थोड़ा सा ये था because like Ruhul said, it's a very uncertain field. चाहे कोई भी art field हो, it's a very uncertain field. You never know. You have to trust yourself and you have to trust who you are. This is the thing. हाँ, you can do it. If you know you can do it and you can stick through it. I mean, also a lot of things come into place with that. मतलब आपका privilege, what sort of a background you're coming from, your finances and all of it. So I think in that case, I got really lucky that I come from a good, like a good decent background, so that
by the time I entered into like earning my own finances, I was supported by my family. So in this sense, I did not have. So the only problems that I've had is in convincing my family that I can do it, because I think they did not really believed in me at that point. Maybe because I was too young to be believed. Um, but then eventually जब मैंने काम करना शुरू किया and then people started coming up to them and they start like आप बहुत एक क्लोज स्पेस में, जैसे अगर आपने मेरी किसी वेडिंग में उन्होंने कोई एंकरिंग देख लिया समथिंग एंड यू नो पीपल कम अप टू देम एंड दे से कि अरे वी रियली लाइक दिस वर्क, यू नो ही इज डूइंग ग्रेट, इज ही अ प्रोफेशनल एंड ऑल ऑफ इट. That is the point when they started realizing that okay, he is doing something right. Maybe this is something that we have not seen so far, but इसका ये मतलब नहीं है कि that this does not exist or that this cannot go ahead. तो वैसे करके मेरा जो फिर then I started with theatre after college. कॉलेज में तो आप ऐसे पेडेस्टल पे होते ही हो आफ्टर योर थर्ड ईयर और समवेयर इन योर थर्ड ईयर. You know, I've never sat in a job interview, but I have also been part of you know all these entrance courses, CPT for CA and then MBA का जो आपका entrance होता है CAT and all. I tried doing it, but I could not live up to it because I was not made for it. So every time I tried going there, I deviated back, like I bounced back in multiple forms, you know, back to my art. And that's when after college I decided that I want to go with theater, and I started with theater. I did theater for 3.5 years, and it really changed me as a person, in the sense where I was coming from and the sort of perspective that you have around, you know, about the world around you. It completely changes because, and especially with the craft of acting and you know all of it, you really get into characters and you get into, you know stories and all of this, where a lot of people are coming from, where you know they're writing these stories from, and what this person might have to go through to, you know, get into this. So in that sense, you learn a lot of things with theater, and with art you learn, you know, how to work in teams and how to you know, it's just about creating a vibe, like maintaining a vibe in the group. I mean, I'm sure because Ruhul is into music, and I'm sure he'll know that if there's something that's wrong with one person in the group, or that one person is not giving their, you know, maybe say 20%, it just destroys the entire vibe of it, right? So I think that's on all of us as a team to work together. So I think these are all the values that I've learned over the years with my craft. So these stories look really beautiful on the surface, but I think it's really important for us to understand that these stories have a darker side to it. For example, what Ikbir had just mentioned, like, you know, कि जैसे आपने अपने बस वाला, whoever used to drive your bus, उनको बोला कि अगर आप मुझे माइक लेके नहीं दोगे, I'll jump off the bus. So Yeah. like, you know, just makes me wonder कि इतना taboo ऐसी conditioning रही है हमारी. To break the spiral, we had to, like, you know, sort of threaten our life, right? So and I'm sure कि when you were in the process, it is not as easy. Abhi maybe retrospect में it seems easier because you have already done it. But I see a lot of people जो अभी process में हैं, and they feel that they are alone. They feel they are not heard. They face a lot of struggles, right? And रुहुल ने एक बहुत ही प्यारी चीज बोली, प्यारी भी और सोसाइटी के बारे में एक बहुत ही एक फैक्ट बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना पर्पस पता है, बट उससे भी ज्यादा लोग हैं कि जिनको अपना पर्पस नहीं पता. सो रुहुल, मुझे ये जानना है फ्रॉम ऑल ऑफ यू एक्चुअली ईरा, बिकॉज हमें जो एक चीज जोड़ती है, हम चारों ने बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइसेस करी हैं, अनकन्वेंशनल डिसीजंस लिए हैं. इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ हैरी पॉटर कोट, it's your choices that define who you are, far more than your abilities. तो मुझे वो जानना है कि जो अनकन्वेंशनल जब डिसीजंस ले रहे होते हो या फिर अपने पर्पस को ढूंढने का जो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कैसा होता है रुहुल और इकबीर एंड ईरा? हाउ इज योर प्रोसेस, एंड जो सोसाइटल प्रेशर था उसको कैसे हैंडल करा आप लोगों ने? we'll start with Ira now. Okay. So yes, it was very unconventional to, you know, join MA in gender studies, because already we are living in a patriarchal setup जहाँ पे I know conventional courses like BCom and everything, and these are good in their own self, but gender studies
is totally different. I always say. I'm sorry, I'll interrupt you. From for the audience, from what I know, पूरे Delhi में there's just one college that actually offers this course and Masters in Gender Studies. तो मुझे लगता है this only speaks a lot about the the demand of the course. So Yes. yeah, just wanted to put this fact out there. So doing gender studies or taking that decision, कि gender studies करना है, was did not come एक दिन में. Like it was a process. Ruhul knows it because we were together in college. So क्या environment होता था जो push करता था, friends होते थे, to have those discussions on feminist theories, feminism, and there's always that one thing कि यार something is wrong with the world, यार कुछ problem चल रहा है, कुछ है, I don't know it, but there is something. So gender बहुत कुछ है studies बहुत कुछ है. So gender studies का लेना decision was एक maybe it was just a छोटा सा वो कि push चलो कर लेते हैं, but after doing it I'm totally a new person now, totally, like total different perspective on things. हर चीज में वो करना, जैसे मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं नुक्स निकालना, मे बी आई वुड से, बट वही पेरेंट्स शायद इतनी जल्दी खुश नहीं होते ना कि तुम अगर सोसाइटी में जो चल रहा है उससे डिफरेंट कुछ करो, तो उससे उनको लगता है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद आवर चाइल्ड. सो वो था, आई थिंक वो रूल ने भी बताया एंड इकबीर ने भी बताया दैट पेरेंट्स ऑलवेज फोर्स यू टू डू समथिंग विच इज कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल. सो it was different. It was a choice that I'm very proud of, honestly. Yeah. Beautiful. Thank you, Ira. Ruhul will go ahead with you. आप बताइए, how was your process of finding your purpose, finding a second act? Okay, so actually the thing was कि from the beginning my parents were not ready for this thing. Like they were like हाँ ठीक है, he is doing it, मतलब ठीक है, ऐसे ही कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, थोड़े टाइम के लिए कर रहा है, हॉबी है, बट उनके लिए वो हॉबी रह जाता है. ठीक है, वो कभी उसको वैसे ले नहीं पाते कि हाँ यार इसमें फ्यूचर है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वी कांट ब्लेम देम, क्योंकि उनको कभी वो एनवायरनमेंट मिला नहीं. पॉइंट ये है. तो इवन इसी बात को लेकर मैं एक चीज और चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल का जो यूथ है वो काफी ज्यादा रिबेलियस हो जाता है अपने पेरेंट्स को लेकर कि आप लोग मेरे को समझते नहीं हो, ये नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. उनका एक अपना एनवायरनमेंट रहा है, उनकी एक अलग स्टोरी है, वो उसी तरीके से आपको ट्राई कर रहे शेप करने की. बट यू कैन ऑल्सो ट्राई कि आप अपनी तरीके से अपनी शेप करो. अब उसके लिए गट्स चाहिए जो कि आपको खुद ही पुट ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज. तो फ्रॉम द बिगिनिंग कि माय फादर वाज लाइक, ही वाज वेरी सपोर्टिव, माय फादर एंड मदर वाज वेरी सपोर्टिव. हाँ ठीक है, तू कर रहा है कर, बट इसको एज एन करियर ऑप्शन कभी नहीं देखा. ठीक है, उन्होंने कभी भी नहीं. ऑब्वियसली देखेंगे भी क्योंकि इंडियन सोसाइटी इज लाइक हाँ ठीक है, क्या गिटार ही तो प्ले कर रहा है, क्या क्या हो जाएगा लाइक दैट. ठीक है, तो लाइक तो पापा मतलब जैसे मैं कॉलेज में आया, स्कूल जैसे फिर कॉलेज खत्म होने वाला था, तो मम्मी यूज्ड टू से बेटा तैयारी कर ले, कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह कुछ फॉर्म वगैरह मतलब फिल कर, तैयारी कर कुछ. तो पता नहीं वो चीज कभी मेरे को स्ट्राइक की नहीं कि यार क्यों करना है. मतलब आई यूज्ड टू सी माय फ्रेंड्स, मैं अभी भी मेरे फ्रेंड्स है जो इवन अभी तक प्रिपरेशन में लगे हुए हैं स्कूल के बाद से. मतलब उन्होंने रेगुलर कॉलेज तक नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि नहीं उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी. नाउ स्टिल नाउ मतलब वो अभी तक तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वो कहीं पे लग नहीं पाए. मुझे ऐसा लगता है उनको जबरदस्ती ऐसे पकड़ के बिठा दिया गया कि तुम्हें यही करना है. ठीक है, अब उसको अभी तक अराउंड 5 years हो गए, लेकिन वो अभी तक तैयारी पे ही लगा है, उसका कहीं पे जॉब नहीं लगा है. तो मैं उनको देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ, फील मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि वो लोग ये कर रहे तो बुरा है, नहीं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट मिला और वो कहीं ना कहीं ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो लड़ नहीं पा रहे. पॉइंट ये कि वो लड़ नहीं पा रहे उस चीज से, मतलब वो घर पे अपने थॉट्स को नहीं रख पा रहे. ठीक है, बट आई वॉज वेरी गुड एट दिस थिंग. मैं तो पूरा मतलब घर पे ऐसे था कि अपनी चलानी है काइंड ऑफ. ठीक है, इन ए पॉजिटिव वे, इन ए पॉजिटिव वे. ठीक है, तो अपनी चलानी है, जो करना है अपने हिसाब से करना है. तो एक स्टोरी है, मैं थोड़ा छोटा सा बताना चाहूंगा कि जब मेरा फर्स्ट गिटार आया था तो पापा ने दिलाया था. ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में इतना पैसे वैसे तो होंगे नहीं, गिटार वॉज अबाउट 5,000 रुपीज. ठीक है, तो इतना नहीं था, तो पापा ने दिला दिया, कैसे कैसे दिला दिया. अब ऑब्वियसली उनको लगता है कि हाँ ये चीज हो गया, ये चीज ले लिया, बस अब इससे हो जाएगा, पूरी जिंदगी ये चला देगा. ठीक है, मतलब इससे निकल जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इन्वेस्टमेंट लाइक इसमें और भी चीजें होती है. तो मैं घर पे कभी बोल नहीं पाया उन चीजों के लिए कई बार कि यार मेरे को ये भी चाहिए, ये भी दिला दो. ऑब्वियसली नहीं बोला जाता है, वी ऑल्सो नो, और कि हमारे घर में
क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो म्यूजिक को किस तरीके से लेते हैं। जिस तरीके से मैं लेता हूँ ऑब्वियसली उस तरीके से तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आई यूज टू, मतलब मेरा ये था कि मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ मैं ढूंढ लेता हूँ करने के लिए जिससे मेरे पास पैसे आ जाए। लिटरली कुछ छोटा, मतलब वो चीज ना ऐसी होती थी कि जैसे आई यूज टू, लेट मी जस्ट, मैंने कभी बताया नहीं किसी को, बट मैं आई थिंक 10th या 11th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने अपने दोस्त से साइकिल बोरो किया था। तो आई यूज टू सेल न्यूज़पेपर्स, डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू द प्लेसेस, ठीक है। लिटरली मैंने एक वीक किया जस्ट टू हैव सम मनी कि मैं अपना थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसिव है वो मैं निकाल सकूं, ठीक है। अब मैं एक हफ्ता किया और मेरी मतलब हालत खराब हो गई, एक हफ्ते में खराब। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ थिंग, ऐसे मजाक नहीं है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनको सल्यूट है, ठीक है। तो एक हफ्ता मैंने लिटरली ट्राई किया ना, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, बट फिर मेरे को एक चीज समझ आई वो चीज करने के बाद कि ये जो तू कर रहा है ये मजाक नहीं है, और अगर इसमें तेरे को रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तेरे को सर्वाइव करना है, तो ये चीजें रेगुलरली होंगी तेरे लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ बिट्स में, पार्ट्स में, कभी ना कभी। तो शुरू से ऐसा रहा कि मैं अपना खर्चा कहीं ना कहीं से कुछ भी करके, नॉट इलीगल, लीगल ठीक है, करके मैं निकाल लेता हूँ, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो निकाल के फिर मैं अपना देख लेता हूँ। फैमिली सपोर्ट ऑलवेज रहा है, हमेशा ही रहा है, बट ये होता है कि उन्होंने कभी इसको एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा कि इसका ये करियर है। देवर लाइक हाँ ठीक है तू कर, तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर। आधी आधी फैमिली तो इंडिया में ऐसी है जो यही कहती है कि बेटा तेरे को अच्छा लग रहा है तू कर। अब उनको ऑब्वियसली मत, उनको नहीं पता। तो मैंने उनको समझाया कि मेरे को इसी चीज में जाना है और मेरे को यही करना है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बहुत टाइम लगा उनको कि उसको डाइजेस्ट करने में कि ये बोल क्या रहा है। पहली बात तो ये कोई नई लैंग्वेज सिखा रहा है क्या हमें ये क्या नया आ गया है, इस सिलेबस से बाहर की चीज आ गई, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया ऐसे ऐसे इसमें भी है, स्कोप है, शोज होते हैं, टीचिंग लाइन में है, काफी चीज है, मतलब अच्छा एक डिसेंट अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। तो बाकी इंडियन फैमिलीज का यही रहता है कि बच्चों के लिए कि सिक्योर लाइफ ढूंढते हो कि भाई तू कुछ भी कर बट सिक्योर रही हो, हर महीने तेरे बैंक में पैसे आने चाहिए, ऐसे ऐसे। तो आई वाज लाइक नहीं मम्मी, आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं अगर थोड़ा भी मेरे पास आता है आई विल बी हैप्पी विद दैट थिंग, ठीक है। तो मैंने वहां से कंटिन्यू किया, और ऑब्वियसली मेनली फैमिली को और सोसाइटी को कन्विंस करने में इतना एनर्जी वेस्ट हो जाता है एक एक बंदे का, कि आई थिंक अगर वो टाइम वो उस चीज में दे अपने आर्ट में तो और ज्यादा वो मतलब अच्छा कर पाए। बट कोई नहीं, उसकी भी अपनी एक मेहनत है, एक एक्सपीरियंस है कि सोसाइटी को आप मना पाओ कि भाई तू जो कर रहा है वो अच्छा है, वो भी एक पाथ है जिसपे चला जा सकता है, एक अच्छा पाथ है। तो मेरा ये था। अमेजिंग, ब्यूटीफुल स्टोरी रूहुल। और जो आपने लास्ट में बोला, किसी एक सेल्स वाले इंसान ने मुझे एक बार एक बात कही थी कि अगर तुम कुछ बेचना चाहते हो एंड इफ यू आर एबल टू सेल दैट टू योर फैमिली, तो तुम किसी को भी दुनिया में किसी हर वो चीज किसी को भी बेच सकते हो। एंड सिमिलरली अगर तुम कोई अपना, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट सेल्स, कि तुम अपना आइडिया बेच पा रहे हो अपनी फैमिली को या नहीं। So this is the thing. I'm sure you have good sales skills, and thank you so much for sharing your story. We'll move to Iqdeer now. Riya Sharma is writing that it's youth ka struggle, which is true. Youth ka struggle. Yeah, Absolutely, Yeah. absolutely, it's like 100%. this only. Convincing. We'll move to Yeah. we'll move to Iqdeer now. कि Iqdeer आपका कैसा process था to like you know sort of convince yourself. I think खुद को convince करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। To you know to not give in to the societal pressure कि हाँ मेरे peers भी कुछ कर रहे हैं, my younger cousin, my elder cousin, my sibling वो भी कुछ कर रहे हैं, like you know they are earning money। वो एक जो you know the idea of having a job वो उसमें fit बैठ रहे हैं। So how was your process like कि like you know how could you pursue your family, or how could you pursue yourself कि हाँ मुझे pursue करना है, I want to do this, and this is what I really enjoy doing that. Yeah. So I think मेरा process सबसे majorly जब शुरू हुआ था that was after college, क्योंकि before college you still have time कि आप figure out कर सकते हो। उस दौरान मैंने काफ़ी बार जैसे कुछ टाइम पीरियड्स के बीच में hints छोड़े थे अपने घर वालों के लिए कि okay I am interested in acting and they've always known। तो आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में था, एक बार सेकेंड ईयर आई गेस स्टार्ट हुआ था, तब मैं घर गया था और मैंने घर पे कहा कि मुझे तो एक्टर ही बनना है आफ्टर ग्रेजुएशन, सो आई वांट टू डू समथिंग इन दिस। एंड आई रिमेम्बर मेरे पापा ने कहा कि ये सब एक्टिंग वैक्टिंग का भूत उतारो अब, एंड नाउ गेट टू बिजनेस, राइट? लाइक गेट टू बिजनेस एज इन नॉट द घर का बिजनेस, लाइक व्हाटएवर जो भी तुमको करना है लाइफ में प्रोफेशनली, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दे थिंक इज अ प्रोफेशन।
और उस वक्त पे मतलब मुझे ये मैंने खुद को संभाला समझाया कि अच्छा ओके ठीक है एंड लाइक रुहुल सेड कि जब आपको कोई कहता है रिबेलियस होना आई थिंक एक सही तरीके से अगर आप रिबेल करते हो तो आप अच्छा कर पाते हो। तो मुझे जब पापा ने कहा कि ये भूत वूत उतार दो तो तब मेरे को लगा कि ओके मुझे जितना ज्यादा मना किया जा रहा है या जितना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखते जा रहे हैं मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है उसको अचीव करना। तो आई वांट टू डू इट मोर Yes. नाउ दैट दे आर सेइंग मी आई कांट डू इट नाउ आई वांट टू डू इट मोर। तो मेरा वो वाला थोड़ा वैसे वाला एक स्ट्रक्चर उस तरीके से काम करता है। एंड देन आफ्टर कॉलेज एक बार मतलब घर वालों के लिए भी और मुझे भी थोड़ा लगा कि आई डोंट नो आई मीन आप एक उस पेडेस्टल पे जब खड़े हो जाते हो पीक पे तो आपको लगता है कि अरे यार यहाँ से गिर गए तो फिर कहाँ जाएंगे। तो वो जो लिविंग ऑन दी एज वाली चीज है वो थोड़ी सी एक पॉइंट पर सता रही थी कि क्या करें। तो उसके लिए फिर मैंने एमबीए का स्टार्ट किया कैट का ये वो बट एक महीने में समझ में आ गया इट्स नॉट माय थिंग। लेकिन मैंने जो मेरे रिलेटिव्स थे मेरे आसपास के उन्हें मैं यही बताता था मैं थिएटर करता था और मैं उन्हें यही बताता था कि मैं अभी एमबीए के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी थिएटर नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब थिएटर का उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मैं थिएट्रिकल या किसी आर्ट फॉर्म में हूँ। उन्हें यही लग रहा था कि मैं कोई प्रोफेशनल चीज कर रहा हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू आंसर दैम। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल दैट ओके आई एम डूइंग थिएटर एंड आई एम आई वांट टू मूव टू बॉम्बे एंड मेक लाइक आई वांट टू वर्क इन फिल्म्स। तो ऐसे आई थिंक धीरे धीरे विद एट डिफरेंट पॉइंट्स इन माय लाइफ मैंने अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे समझाया खुद को भी समझा। लाइक आप खुद को भी समझा रहे होते हो आप कभी कभी आप खुद भी यू नो सेल्फ डाउट्स वाली चीज जब आ जाती है जब आपकी peers आसपास यू नो दे आर अर्निंग एंड मे बी यू नो योर cousins और anyone around you they are getting married and they are getting settled down। तो आपको एक अनसेट सा प्रेशर आपको एक फील होता है लाइक मे बी आपकी फैमिली क्या सोच रही होगी या यू नो मे बी दे आल्सो वांट यू टू सेटल डाउन। बट मेरे केस में चीज अच्छी ये है कि मैं इन थॉट्स को ज्यादा घर करने नहीं देता। if they come I just let them come and they go and then I get back to who I am। so I think that's made me you know because सबसे ज्यादा जरूरी and especially in art field in any field in general मैं यही सोचता हूँ कि क्या होता अगर मैं बिजनेस में होता या अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता I would still have to work hard for it right। जरूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ शुरू करता तो मुझे वहां पे सक्सेस मिल ही जाती। that's not a short way to be successful in life तो why not this। तो yeah थैंक यू एक पीरियड बहुत ही रिलेटेबल स्टोरीज निकल कर आई। आई थिंक मैं अपनी स्टोरी भी यहाँ बताना चाहूंगा। सो लॉट ऑफ पीपल डू नो आई एम अ ड्रॉप आउट। मैंने कभी अपनी बैचलर्स डिग्री कभी कंप्लीट नहीं करी। आई वाज इन चंडीगढ़ इन अ कॉलेज एंड आई डिड नॉट लाइक व्हाट आई वाज स्टडीइंग। सो ये मेरा एक रिबेलियस एक्ट था। आई थिंक रूहुल और एक भी इन दोनों में से किसने ये भी कहा था कि बहुत ही रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे तो मैं भी उनमें से एक था। I as an act of rebellion I dropped out and I started teaching myself। मैंने random courses करे I went out in the field मैंने random organizations join करी you know just to get that experience जो maybe मुझे college देता but वो एक textual मिलता और मुझे ज्यादा चुल थी कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आई वांट टू यू नो टेस्ट माय स्किल्स कि मैं कितने पानी में बिकॉज एट द एंड आई आल्सो कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ पंजाब एंड बड़े शहर में मुझे था कि हाँ यार खुद को प्रूव तो करना है। अगर घर वालों ने पैसे लगा के भेजा एक बड़े शहर में सो आई हैव टू प्रूव माय वर्थ। तो I still remember very recently I think 6-7 I think a year ago I overheard one of my parents you know किसी रिश्तेदार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ हमारे बच्चे ने तो BBA कर ली है now he is preparing for his MBA and they entirely knew that he has already dropped out and I was really like I was doing fairly well। I was in another country you know doing a like really good job and everything but still उन्होंने कहा कि हाँ BBA तो हो चुकी है अभी बस वो नेपाल गया हुआ है कुछ करने के लिए didn't even know what I was doing तो इसके बाद वैसे MBA करेगा। सो आई थिंक वो जब एक घर वालों से वैलिडेशन नहीं मिलती ना तो एक बहुत ही धक्का लगता है खुद को कि यार घर वाले नहीं वैलिडेशन दे रहे तो यू नो किसके पास जाऊँ मैं वो वैलिडेशन जो मुझे चाहिए। तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल होता है प्रोसेस बट नाउ आई सी मैं ये कहता हूँ कि इट वाज ऑल वर्थ इट। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। ये नहीं है कि आई हैव डन समथिंग बट आई हैव मेड सम प्रोग्रेस। सो मैं तो आई स्ट्रांगली से दैट इट वाज ऑल वर्थ इट।
And hey, Mira, I think one of the last questions hoga for all of you, was it worth it taking an unconventional route and going against the societal conditioning and pressures? So I think we'll start with Ruhul. Was it Oh, worth sure. it, Ruhul? Okay. आप बताइए. Okay. So okay, was it worth it? Okay. तो मेरे साथ क्या था कि मैंने ना कभी जैसे कोई भी अगर मैंने डिसीजन लिया हो अपने लिए तो मैंने कभी उस पर सेकंड थॉट नहीं रखा है। मतलब मेरा पता नहीं ये एटीट्यूड है मेरा अपने साथ कि मैं कुछ भी सोचता हूँ कि मेरे को ये करना है तो मैं एक बार पीछे नहीं देखता कि यार मैंने गलत तो नहीं सोचा कि ये करना था या नहीं। आई जस्ट डू इट, ठीक है। तो ये चीज है, सबके साथ नहीं हो पाता और ये चीज मेरे अंदर है तो मेरे को काफी अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट मैं रिग्रेट नहीं करता पीछे मुड़ के कि यार वो नहीं किया था, ऐसे करता तो ऐसे होता, ऐसे करता तो नहीं। वैसे आपने नहीं किया ना, आपने जो किया है आप उसी पे हो, ठीक है। तो इसके बारे में सोचो। तो हाँ, काफी ब्लंट डिसीजन था मेरा जब मैंने ये लिया कि मेरे को फोटोग्राफी एंड म्यूजिक में ही करना है एंड क्या करना है वो मैं सॉर्ट कर लूंगा, बट मेरे को यही करना है, ठीक है। तो आई कैन से कि आफ्टर आई थिंक इवन मैं कॉलेज डेज में भी मैं अर्न कर रहा था अपने जो मैं प्रोफेशन जो मैंने फॉलो किया है उससे मैं एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहा था। और इवन स्टिल नाउ आई थिंक कि मैंने अपने आप को काफी ज्यादा एनहेंस किया है और काफी अभी भी उस प्रोसेस में, जैसे कि बताया मानिक ने बताया कि हम, क्योंकि हम जैसे लोग ना हमेशा प्रोसेस में रहते हैं, वी यूज टू लर्न, मतलब हमें रोज सीखना है कुछ, क्योंकि ये पाथ हमने खुद अपने लिए चूज किया है। तो क्योंकि एक होता है ना, सपोज आपको एमबीए करना है, सपोज आपको एमबीए करना है, कोई कॉर्पोरेट जॉब करना है, तो आपको स्टेप्स पता है, यू नो द स्टेप्स कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर यहाँ एग्जाम देना है, फिर ऐसे ऐसे, फिर इंटर्नशिप करना है, फिर जॉब। अब यहाँ नहीं है कुछ ऐसा, इट इज लाइक ऑल ब्लैक, ठीक है। अब सही दरवाजा खुले तो ठीक है। अब ये रिस्क भी ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर है इसमें, पूरा रिस्क है, लेकिन वही है कि आपको अगर अपने आप पे भरोसा है तो यू यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू कैन एट एनी कंडीशन आप जा सकते हो। मतलब वही है ना कि इट्स लाइक कि अगर मेरे को पता है कि मैं अगर यूपीएससी की तैयारी भी कर लूं तो भी आई थिंक मैं यूपीएससी के एग्जाम नहीं क्रैक कर पाऊंगा। सबको अपने अंदर का पता होता है कि वो कितना कर सकता है कितना नहीं। तो इसके बारे में मैं पूरा श्योर था कि तू कर लेगा। तो इट वाज लाइक ओके। और अभी यस इट इज क्वाइट, मतलब काफी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से कि मैंने ये डिसीजन लिया अपने लाइफ में और आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस थिंग। और आज जो भी हूँ मैं, जिस भी सिचुएशन में आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ काफी, मतलब आई एम काफी अच्छा है, मतलब अच्छा है। यू कैन से। Thank you, Ruhul. Ira, what about you? What do you have to say? Was it worth it? Absolutely, without any doubt, absolutely. I've never imagined पहले कि I'll be this kind of person. I'm not saying that I'm बहुत ऐसे कुछ कर लिया, as हाँ, everyone is saying कि we all are in process, like we learning. और मानिक और मैं तो इस बारे में yes, बहुत बात करते हैं that how much we love to learn and talk about it. So we all are in process. हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो एक्सेल शीट बनानी हो, किसी से बात करनी हो, yeah, या पिंक टॉयलेट्स पे किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी हो। तो उन सारे एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभार मैं मानिक को ये भी बताती हूँ कि मैं अपना फेमिनिज्म उनके अंदर डालकर आती हूँ, जो मैंने सीखा है मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं नहीं आप ये मत करो, आप that's a ऐसे good मत करना, आप ऐसे करना, वैसे करना। तो ये एक एक्सचेंज जो रहता है वो मुझे सिखाते हैं बहुत सारी बातें जो मुझे नहीं पता उनके पार्ट पे। जो सोच जब सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि हाँ, मतलब दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट डिफरेंट दैट आई नो। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो इट्स अ प्रोसेस एंड आई वुड से दैट इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। Thank you, Ira. Please, we'll come to you. Was it Yeah, worth it? आई थिंक एब्सोल्युटली। एंड मेरे केस में तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज को कंफर्म कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इनटू टू अदर प्लेसेस वेयर यू नो आई थॉट आई माइट बिलोंग, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैं वहां नहीं हूँ, एंड दिस इज वेयर आई एम। और यहाँ से मुझे छोड़कर जाने का या भागने का कभी मन नहीं करता। तो आई थिंक हाँ, ये सबसे बड़ा एक मेरे लिए अपने आप में एक पॉइंट है कि ओके दिस इज माय प्लेस एंड आई एम एट द राइट प्लेस। बट आई डू फील आप, मतलब एक समुंदर जैसा है, हम वी आर ऑल सेलिंग, वी आर नॉट ऑब्वियसली, हम में से कोई भी बहुत ज्यादा यू नो वी नॉट लाइक टू रिच एंड टू सक्सेसफुल पीपल, बट वी आर स्टिल इन द वाटर, राइट? एंड yes, that is what is important. I remember there's this very famous saying which says matlab something like this, that you just have to keep moving, you just have to keep making a move, you just don't have to play dead, because yeah, whenever you are moving, someone will always give you a hand, they'll always help you.
So I think just sailing and being in the water is the most important thing. So it's absolutely worth it. Yeah. What about you? Beautiful. Yes, I would say absolutely worth it. Again, still in the process, but वही जो मैंने I think शुरू में कहा कि जो हमारी choices होती हैं that do tell ki what kind of person or persons we are, and even though we have not made a lot of things or a lot of materialistic things for ourselves, but I think क्योंकि हम सभी किसी ना किसी तरीके से एक आर्टिस्ट हैं, तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल वेल्थ है वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ थ्री ऑफ यू. एंड एक पार्टिंग लाइन जो मैं कहूंगा, वन लास्ट एडवाइस फॉर एवरीवन, एंड मैं लेकिन आई विल कम टू थ्री ऑफ यू फॉर वन लास्ट लाइन दैट यू वुड वांट टू लीव एवरीवन विद. सो मेरे लिए इट वुड बी ट्रस्ट द प्रोसेस, because that's what I did and it was absolutely worth it. So I'll ask Igbir now, ki what's that one line that you want to leave the audience with? Ira, please. Okay, एक bit please. Yeah, just do it. I mean, that's a tagline though, but just do it. No, that's a very quick one. Okay. Yeah. Now, Ira. Ruhul, okay, Okay, we come to I Ira now. will We come pull to out. Ira now. I Ajay, will you have one in your mind. Okay, I need to think. तो तू बोल ना यार पहले. Okay, let's come to Ruhul. एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, भी लोग देख रहे हैं, रिश्तेदारों की मत सुनो, ठीक है? उनसे दूर रहो आप, जैसे लिटरली, क्योंकि रिश्तेदार ना, मतलब देयर रिलेटिव्स आर लाइक, वो है आपके रिलेटिव्स, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर सबसे बड़े दुश्मन है ना आपके कोई, तो ये आपके आसपास के लोग ही होते हैं जो आपके करीब होते हैं, ठीक है? तो इनकी बातें नहीं सुननी है, आप अपना करो, ठीक है? इसलिए कि उनकी सुनो, ऊपर से निकाल दो, इग्नोर मारो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि उनको डिसरिस्पेक्ट करना है आपको, बट उनकी बातें सुनो, करो अपनी, सब सुनो, सबकी करो अपनी. या दिस इज द थिंग. Amazing. Thank you, Ruhul. Ira, we come to you now for the last something that you want to leave the audience with. I would say that of course जब भी कुछ भी अनकन्वेंशनल सा होता है तो बहुत सारी, जैसे रूल सेइंग कि बहुत सारा बोलते हैं कि दे ट्राई टू पुल यू डाउन कि नहीं ऐसे मत करो, वैसे करो, ऐसे. सो इट्स ओके, हम भी सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, हर कोई चला जाता है सेल्फ डाउट में कि करना चाहिए कि नहीं. बट आई थिंक इफ यू truly love it, if you think that it's for you, जहाँ मन लग रहा है, then just do it. मतलब it's important to have your heart over there कि यही है. It's about दिल लगना चाहिए वहाँ पे. Beautiful. And yes, that being said, I pass on to Ira for closing the session. And yes, मेरी तरफ से thank you, Ira. On to you now. Thank you everyone. Thank you so much. It was an interesting session. इतना कुछ हमें सीखने को मिला, हमें एक दूसरे से इतनी अच्छी डिस्कशन हुई, बिकॉज वी यूथ आर स्ट्रगलिंग अ लॉट विद दीज काइंड ऑफ स्टफ, जहाँ पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, स्पेशली इन अ फील्ड लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म. तो या फिर कोई भी आई वुड से करियर फील्ड हो या कुछ भी हो, तो हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं. Okay, so someone has said कि ask Ruhul. Yes. I think this should happen. What? This should happen. No, please. I would Not I would just say one line और उसके बाद I would say कि Ruhul को गाना गाना पड़ेगा. So that is thank you so much. I think whole college is over here and saying कि आज तो Ruhul गाना गाएगा. अरे यार फंस गया मैं तो आज. Okay. Just wait a second. Let me just think. आप लोग बातें करो. Let me just think कि मैं कौन सा गाऊँ थोड़ा, ठीक है? Sure. I think so one thing that I would want to say कि ये जो sessions हैं हम second arc की तरफ से कर रहे हैं, these are going to be these are going to happen every Friday, and we'll experiment with the time. We have seen कि हाँ 5 बजे कितने लोग आते हैं. We'll experiment with the time. But ये जो major objective है इस sessions का, that is to starting में I think किसने बोला था कि बहुत सारे यूथ के लोग हैं जो बहुत सारे challenges face कर रहे हैं, who feel कि they are alone, who feel they are not heard. So these sessions are to ensure that you are not alone,
we hear you, we listen you, and again, as I said, कि trust the process. तो जो यहाँ पे stories होंगी, they are going to be inspirational, and we just hope that it inspires you to follow your second act. We just hope that you do something, you make choices that would take you towards your purpose, and most importantly, we want you to find your purpose. So I think Ruhul is ready to sing. Let's hear it And out. I think someone has said कि Iqbal can also sing. So I think both of Yeah, you get. Iqbal, please. Even I don't think I Good, We good. have Iqbal, performers. please go on. We have performers. We cannot skip this chance. Come Yeah. on. We Iqbal, cannot. please go on first. I'm so sorry. I just don't think I can sing at this moment. So I think Ruhul, I'd like you to do. Please go on. Okay, I won't force you because of your health reasons. Okay, but I I only won't. 2 or 3 lines. Please. Only 2. I just remember 2 and 3 lines. Okay. So, ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर है जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता. तो आई थिंक इन लाइन से भी काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है. तो आई मीन टेक दिस Beautiful. I सेशन think दीज लाइंस. थैंक्स अ लॉट. सभी को इससे ज्यादा नहीं गा पाऊंगा. प्लीज पेमेंट भेजनी पड़ेगी. Nothing for free. Nothing for free. नथिंग फॉर फ्री. या नथिंग फॉर फ्री. सभी आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नथिंग फॉर फ्री. Yeah. beautiful. एक बड़ी अच्छी मूवी का ये सॉन्ग है. I think पाठशाला का गाना है. It's been very long, but still I remember Shahid Kapoor. It's a beautiful movie. And yes, thank you so much, everyone. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. And Thank we you log for off having now. us here.